टास्क है. सो अब इन सब को फिर ऑप्टिमाइज़ करने की भी ज़रूरत है. अब हैवी टास्क की इतना सब कुछ है, तो उन सब चीज़ के लिए, क्योंकि सिर्फ अभी हमने जो ग्राफ देखा था इनिशियली ब्लू ग्रीन वाला, वो सिर्फ किस चीज़ के लिए था? सिर्फ 2 वेट्स के लिए. असली में एक न्यूरल नेटवर्क सिर्फ 2 वेट्स पे तो चलता नहीं है. यू हैव टू यूटिलाइज वेट्स ऑफ इन मिलियंस. एज यू नो, लाइक वी सी की llama got 8 billion parameters, 5 got 2 billion parameters, ChatGPT got like how many millions and billions of parameters. So what are those parameters? Those inputs, weights, and that's how we calculate. So in level of millions, the graph we are going to get will be very extremely complex. We can't even imagine, and that's why we are not going to get graph every time in a simple way. So I already introduced you with the learning rate. So there are techniques which by which we can change our learning rate and few other things to optimize it. I have already explained the example that if you are here and you want to achieve this loss level, but because of different values of learning rate, you have to select a very suitable learning rate. Then and only you will able to reach here. Otherwise, either you will stuck here or you will be exploding here and there and won't be able to go here. Now, डील कैसे करें? एक तो तरीका है लर्निंग रेट का कि आप उसे रैंडमली सेलेक्ट कर लें. आप एक पर्टिकुलर नंबर के साथ ट्राई करें, वो उसको साथ ट्राई करें, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, देन आप अगेन कुछ करें, रैंडमली आप बस टेस्ट एंड ट्रायल करते रहें. लेकिन ये तरीका लाइक बहुत कंप्यूटेशनली भी वो होगा गड़बड़, और लाइक रैंडमली कितना ही चीज़ ऑप्टिमाइज हो सकती है. सो एक अनदर और एक स्मार्टर तरीका है कि वी गेट फ्यू एल्गोरिदम्स. उन एल्गोरिदम्स की वजह से जो लर्निंग रेट है वो फिर पूरी ट्रेनिंग के वक्त कांस्टेंट नहीं रहता है. फिर वो लर्निंग रेट जो है अपने आप को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द लाइक कंडीशन, कि किस तरीके की अभी किस तरीके की लाइक कंडीशन में वो अभी है, कि अभी मॉडल कितना ट्रेन हुआ है, कितना बचा है, अभी किस स्लोप पर है, किस लेवल पर है, कितने पैरामीटर्स ट्रेन हुए हैं, किस ऑप्टिमाइजेशन पर हैं. इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होकर जो भी कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से जो लर्निंग रेट है वो चेंज होता रहता है. सो वी हैव फ्यू टेक्निक्स. वी हैव SGD, ADAM, ऑल दीज आर टेक्निक्स. वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू इट कि लाइक कैसे ये टेक्निक्स काम कर सकती है. यू कैन सर्च इन ऑन यूट्यूब एंड सी वीडियोज ऑन इट, but for the sake of time, we are just going to know कि these are the techniques which work along with our training process, where learning rate gets changed according to the conditions we have got in our training. You can initialize your like learning rate by this optimizer technique, SGD, ADAM, and many more. Now, there is another optimization technique called mini batches. Let's say you have a lot of data in thousands and millions and you want to train on it. But that data will be computationally very heavy and demanding, because training on that data in complete series will be like very heavy. It may decrease and cause the problems of overfitting. We will know what is the problem of overfitting, but right now we have a solution called mini batches. What we will do, for very basic example, if we have a data of 1000, so what we are going to do, we are going to divide our data of 1000 with the batches of 10 of 100, like one batch of 100 data, one batch of 100 data, like this, into 10 batches. So now we have 10 batches of 100 data points. Our GPU going to run all these them in parallel. Our GPU, you if anyone know कि GPU कैसे काम करता है, then you like, तो आपको पता होगा कि जो GPU होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में वेरी फास्ट होता है. वो बहुत ऑप्टिमाइज होता है पैरेलल प्रोसेसेस करने में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने में. और दिस इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन हियर. Instead of calculating all 1000 at once, GPU going to calculate the batches of 100 and work on them, so it will be more optimized and faster.
एंड जो एक्यूरेसी आती है मॉडल की वो भी बहुत अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 100 पे जो काम हो रहा है उसमें, और ये बैचेस की जो क्रिएट करने की एल्गोरिदम होती है वो भी एक अलग होती है कि लाइक ऐसा ना हो कि सारे डेटा पॉइंट्स एक बैच में आ जाए तो वेराइटी ना बचे, इस टाइप से। So we already see like how gradient descent works. You go down towards the minimum loss by calculating the gradient descent loss, and you changes your weights according to it. And while changing the weights according to it, we then compute our neural network again. We get another input, and the same process goes. These are all the things I have already explained you. Mini batches technique कि like allow the larger learning rates. Larger learning rate से क्या होगा कि जो लर्निंग रेट है उस पर वो डिपेंड करता है। एक्चुअली लर्निंग रेट जो था, जैसे अभी मैंने कहा, तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, उसकी क्या कंडीशन है। कभी उसे लर्निंग रेट शुड बी स्मॉल, sometimes learning rate should be very high. So for all these things, mini batches helps in training very well. सो एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मिनी बैचेस क्या करते हैं, पैरेलल कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल 1000, आर GPU गोइंग टू हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द हंड्रेड बैचेस in parallel, then the speed will be higher and more optimized our model will become. Now as we see, we have now overfitting. Now what is the problem of overfitting? So here will be graph. So this is the graph. Now what happens, as we saw here, this is the graph, this is the data point, and we have this. Now for this, if some points, let me just draw it. Now let's say if some data point stays here, so we are going to say that okay, this data point belongs to red. If some point stays here, then we say the data point belongs to here, and we have already saw. But what if the data points are distributed in such a way that you can't have single straight line? So we then introduced non-linearity in our model. But the thing gets problematic, but when we add a lot of data in our training, and not the lot of data but variety of lot of data. So it happens that when you give a model a lot of variety of data, so it tries to fit every variety in its model so that it can predict. But the problem it gets into it कि because of this, जो मॉडल होता है बहुत एक ईजी वे में अभी ये है, अभी जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन उतना बेटर प्ले नहीं कर पा रही हमारे मॉडल के लिए। क्यों? क्योंकि मे बी सम पॉइंट्स होने चाहिए जो किसी कैटेगरी में आते हैं वो लाइन के पास आ रहे हैं। ये वाले दो कैटेगरी एक में आते हैं, जबकि ये मे बी लाइक वी कैन सी ये लाइन से डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बट हेयर इससे ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। सो इस वजह से ये तो ओवरफिटिंग आती कब है, जब स्ट्रेट लाइन जाता है वो ट्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होने की। और जब ऐसा होता है, और वो ऑप्टिमाइज़ होने की ज़्यादा से ज़्यादा कब कोशिश करता है, जब वेराइटी ऑफ डेटा इंक्रीज़ होता है। और जब वेराइटी ऑफ डेटा इंक्रीज़ होता है तो वो डेटा के हिसाब से ग्राफ बनाने की कोशिश करता है। उस चक्कर में वो इतना भी ऑप्टिमाइज़ नहीं हो पाता कि वो सही प्रिडिक्शन दे पाए। सो ओवरफिटिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप उसे कॉम्प्लेक्स और बहुत वैरायटी डाटा देते हो तो वो ट्रेनिंग के वक्त में तो आउटपुट बहुत अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रेन हुआ है। तो जब आप ट्रेनिंग डेटा उसे अगेन दोगे तो उस पर बहुत बेटर काम करेगा, क्योंकि उसे वैरायटी ऑफ डेटा मिला है। लेकिन अगेन आप उसे कोई नया डेटा दोगे तो वो उस पर प्रॉब्लम देगा, उस पर एक्यूरेसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने इतना सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे मर्ज करने के लिए इतना लाइक वो ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हुआ, तो उसने कोई जनरलाइजेशन उसने इतनी कम रखी कि उसे वो ट्रेनिंग डेटा पर ट्रेन होकर नए डेटा के लिए वो कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा कि वो नया डेटा के लिए कोई डिफ्रेंसिएशन पार्ट बने। आइडियल फिट क्या होता है कि वो एक लाइक सुटेबल पोजीशन पे है जहाँ पे उसके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा भी है और वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जनरलाइजेशन भी कर पा रहा है।
अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम कब आती है? जब आप उसे या तो ट्रेनिंग कंप्लीट ट्रेनिंग से पहले एक रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग से पहले ही आप मॉडल बंद कर देते हो ट्रेन होना, या फिर उससे आप वैरायटी ऑफ डेटा नहीं देते हो। तो जब वो वैरायटी ऑफ डेटा उसके पास होगा नहीं तो वो जनरलाइज नहीं कर पाएगा कि बिटवीन डेटा कि वो क्या डिफरेंस है, उन सबको वो एक कैटेगरी में डाल देगा। जब एक कैटेगरी में डाल देगा तो लाइक मॉडल फिर प्रिडिक्ट कैसे करेगा दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में? अंडर फिटिंग तब आती है जब आप मॉडल को जो डेटा देते हो वो बहुत सेम हो या बहुत कम हो। ओवर फिटिंग कब आती है? जब आप उसे डेटा बहुत वैरायटी और ज़्यादा क्वांटिटी में देते हो तो वो उसे जनरलाइजेशन करने के चक्कर में उसको सिर्फ वो ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से मैनेज हो जाता है, लेकिन जब नया डेटा आता है जिसके लिए हमें प्रेडिक्शन देनी होती है तो वो गलत। तो आइडियल फिट हमें बेस्ट करना होता है जिसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग भी देनी है और डेटा भी अकॉर्डिंगली देना है। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन में कुछ स्टेप्स आते हैं। या तो हम ड्रॉप आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ ड्रॉप आउट? कि वाइल ट्रेनिंग हम इनमें से कुछ न्यूरॉन रैंडमली उन्हें हटाकर सेट टू ज़ीरो कर देंगे, लेट्स से 0। और ये रैंडमली लाइक मोस्ट प्रोबेबली समटाइम्स 40% और 50%। सो इस लेयर में लेट्स से हमने इन दो को कर दिया 0 पे, इसमें हमने इन दो को कर दिया 0 पे। क्या होगा कि रैंडमली डिक्रीजिंग the number of neurons will decrease the complexity and can optimize the training process. इससे overfitting की प्रॉब्लम कम आएगी। this is the one of the way randomly dropping the activations to zeros. Activations to 0 means the value inside them 50%, so they have used 50, it varies between 40 and 50। अगर ये सब 0 हो गए, the complex structure जो था यहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था अब उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रहा, तो जो डेटा है वो जनरलाइज आसानी से हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। सिमिलरली ये चीज़ बदलती रहती है। सेकेंड वे इज अर्ली स्टॉपिंग। व्हाट हैपन्स इज लेट्स से हाँ यहाँ पे तो ऑफ है। एज यू कैन सी इनिशियली ट्रेनिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होता है और आइट्रेशन अभी स्टार्ट ही हुई होती है। फिर नंबर ऑफ आइट्रेशन पड़ती हैं जिसमें ईच आइट्रेशंस में हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन, ग्रेडियंट डिजाइन, लॉस कैलकुलेशन, ये सब होता है सिर्फ एक साइकिल के अंदर। व्हाट हैपेंस इज कि फर्स्ट आवर मॉडल स्टार्ट गेटिंग ट्रेन एंड आफ्टर गेटिंग ट्रेन दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे हमें अपनी ट्रेनिंग रोकनी चाहिए। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि अगर हमने पर्टिकुलर अमाउंट से पहले ट्रेनिंग रोक दी दिस विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग कि लाइक वो पर्टिकुलर अच्छी तरीके से ट्रेन ही नहीं हुआ तो उसने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को सेट ही नहीं किया। अगर हमने उसे ज़्यादा टाइम के लिए रखा ट्रेन के लिए वो भी हमें कॉज कर सकता है ओवर फिटिंग। क्योंकि अब वो उस वेराइटी ऑफ डेटा के हिसाब से अपने ग्राफ को और से ज़्यादा लाइक डिस्ट्रीब्यूट और उसके हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करेगा जो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम देगा। अब अगर ओवर फिटिंग को बहुत आसान भाषा में समझना है तो वो ये है कि वो वेराइटी ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने की इतनी ज़्यादा कोशिश करेगा कि जनरलाइजेशन कम हो जाएगा। और जब जनरलाइजेशन कम हो जाएगा तो नया जो डेटा आएगा वो उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्योंकि अब वो हर डिफरेंट डेटा पॉइंट के लिए डिफरेंट है, तो वो जो नया डेटा आएगा वो किसी कैटेगरी में भी लाइक बैठ ही नहीं पाएगा, तो वो ऑप्टिमाइज आंसर नहीं दे पाएगा। देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस रोक देनी होती है वेयर यू विल गेट द मिनिमम लॉस। दिस इज द टेस्टिंग एंड दिस इज द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग विल ऑलवेज बी ऑप्टिमाइज बिकॉज आपने उस डेटा पर ट्रेन किया है और आपने उसे एक्चुअल आंसर भी दिया है, बट जो ट्रेनिंग डेटा है वो एक टाइम तक तो ऑप्टिमाइज रहेगा। और यहाँ अगर इससे पहले रोका तो अंडर फिटिंग क्योंकि आपने से पर्टिकुलर ट्रेन ही नहीं किया कि वो अपने आप को सेट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा कर्व मैनेज कर पाएगा और कुछ टाइम में रुक जाएगा, तो वो कुछ सेगमेंट्स को लाइक इतना जनरलाइज भी नहीं कर पाएगा। और वो इतना जनरलाइजेशन की कोशिश करेगा कि हर एक पॉइंट्स के लिए वो डिफरेंट रहेगा, तो कोई कैटेगरी में नया पॉइंट आ ही नहीं पाएगा। तो ये एक अर्ली स्टॉपिंग की टेक्निक होती है कि जिससे हम अपने एरर को बचा सकते हैं। This is where you have to stop it, or it can be manual or automatic. मेन रिवीजन अगर एक फाइनल वे में यही कहा जाए तो एक बेसिक लेवल पे इनपुट्स होंगे, वो वेट्स के साथ कैलकुलेट होंगे
वेट्स में एक्टिवेशन अप्लाई होगा, एक्टिवेशन अप्लाई होके वो आउटपुट में जाएगा, देन वी विल कैलकुलेट लॉस by comparing our output and the required actual output. लॉस कैलकुलेट होगा, देन वो ग्रेडियंट डिसेंट में जाएगा, ग्रेडियंट डिसेंट में वी विल ट्राई टू डिक्रीज आवर लॉस एज मच एज पॉसिबल, देन अकॉर्डिंग टू आवर लॉस वी विल चेंज आवर वेट्स चेंज होकर वो अगेन बैक जाएंगे, इनपुट्स के साथ कंबाइन होकर अगेन वो फ्रंट प्रोपिगेट करेंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी. सो फ्रंट प्रोपिगेशन, लॉस कैलकुलेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, वेट्स अपडेटेड, बैक प्रोपिगेशन, और ये सारा बैक प्रोपिगेशन में देन अगेन फ्रंट प्रोपिगेशन, और ये आइट्रेशन होती रहती है. और ये आइट्रेशन को जब तक जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, लेकिन अगेन एक लिमिट तक ही, उसके बाद ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है. एंड दिस वाज इट. सो यू हैव टू लाइक वर्क ऑन इट कि एक न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है. उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रंट प्रोपिगेशन, बैक प्रोपिगेशन. सो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा कि हाउ एक्चुअली थिंग वर्क. या प्रिडिक्ट कैसे करता है, कि आपको लगता है कि मैं ये लिख रहा हूँ, वो प्रिडिक्ट एक्चुअली कैसे कर रहा है. तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी की वजह से प्रिडिक्शन देता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उतनी. सो एक जैसे कि बेसिक एग्जांपल होता है कि ये न्यूरल नेटवर्क है पूरा, और यहाँ पे हमारा था लेट्स से फॉर 0, this is for 1, this is for 2 and this is for 9. what you do is कि let's say मैंने कुछ नंबर प्रेडिक्ट करा, let's say मैंने हैंड रिटन लिखा 2. सो और ये जो फोटो है, ये इमेज मैंने अपने न्यूरल नेटवर्क को दी. ये न्यूरल नेटवर्क में कैसे जाती हैं, ये न्यूरल नेटवर्क में जाती हैं एज अ पिक्सल्स, डेटा वैल्यू एज अ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स वैल्यू जो है अरेंज करते हैं हर एक की 0 से 1 के बीच में. ये मैट्रिक्स डेटा वैल्यू न्यूरल नेटवर्क पे जाती हैं, वो उसमें वर्क करती हैं. फर्स्ट कुछ प्रिडिक्ट करती हैं, अब कुछ प्रिडिक्शन के बाद वो प्रिडिक्ट करने के बाद वो एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करती हैं. एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर होकर वो बैक प्रोपिगेट होती हैं. अब इनके जो वेट्स हमने पहले रैंडमली दिए थे वो चेंज होंगे इस तरीके से कि लेट से वो अगेन प्रिडिक्ट करेंगी. वो प्रिडिक्शन अगेन थोड़ी सी और क्लोज होगी और ऑप्टिमाइज्ड होगी, और ऐसे करते करते लेट से जो फाइनल प्रिडिक्शन होगी वो इस टाइप से होगी कि लेट से 0 है, तो अब ऐसे 0 है और ये 2 है, इसका अपर पार्ट मोस्टली सेम है, तो लेट से ये थोड़ा सा 0.2 हो सकता है. 1 मोस्टली कोई 2 से मैचिंग नहीं है, तो ये मे बी लाइक 0.09 होगा. 200% मैचिंग है तो ये लाइक 0.099. 3 का अपर पार्ट मैच कर रहा है तो लेट से 0.4 भी हो सकता है. सो ये तो हमारे पास आउटपुट्स 10 होंगे, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमारा आंसर होगा. सो इस टाइप से न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है. ये न्यूरल नेटवर्क टेक्स्ट टू इमेज में काम आता है कि टेक्स्ट है, सॉरी इमेज टू टेक्स्ट में काम आता है कि इमेज आपने दी उससे टेक्स्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं. वो लाइक वो RNN में बेसिक यूज़ आता है. RNN का हम बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए बेसिक न्यूरल नेटवर्क में हम उसे इनपुट देते हैं, वो फ्रंट प्रोपिगेट करता है. इनपुट वैल्यू वेट्स के साथ कंबाइन होके एक्टिवेशन में जाके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो उसके वेट्स के होते हैं उससे यूज़ होकर आगे जाती हैं. लॉस कैलकुलेट होता है, लॉस के कैलकुलेशन से वेट्स चेंज होते हैं इन सच अ वे कि जो लॉस का ग्रेडियंट वाला ग्राफ हमने पढ़ा था उसमें लॉस की डायरेक्शन में जितना लॉस लेस हो सकता है उस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ जाए, उस हिसाब से वेट्स चेंज होगी. अगेन सेम प्रोसेस चलेगी. हमारे वेट्स जब एक फाइनल हो जाएगा कि लॉस लीस्ट हो जाएगा, तो जो फाइनल वेट्स हमारे होंगे उसे ही हम कहेंगे ट्रेंड मॉडल वेट्स. सो हम जो इंटरनेट पे कहते हैं कि लेट्स से कि टेंसर फ्लो का कोई मॉडल है तो उसके वेट्स डाउनलोड करें. सो इट्स लाइक एक्चुअली प्री ट्रेंड वेट्स. वो वेट्स प्री ट्रेंड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर आते हैं. अब वो वेट्स फिक्स हो चुके हैं, अब वो बदलने की ज़रूरत नहीं है. अब आप उसमें सिर्फ इनपुट्स दोगे, वो इनपुट्स उन ट्रेंड वेट्स के साथ कैलकुलेट होकर सिंगल फ्रंट प्रोपिगेशन में जाएंगे, और जो आउटपुट देंगे वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होगा और एक्चुअल के बहुत नियर होगा. सो इस तरीके से हमारे न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं. थैंक यू.